Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the parents and teachers. How are you all? Today we are going to start lesson 6 of class 3 New Oxford Social Studies for Pakistan. This is the book for class 3 and today we will read lesson 6, that is services. In this unit, in this lesson, we are going to study about different services which are being given, which are being provided in any country. Okay, so here we are going to study about some services which are being given in Pakistan. Number 1 is the police service. As you can see here that this is a traffic police and this is a normal conventional police station. आप लोगों ने पुलिस स्टेशन जो है और पुलिस के लोग अक्सर ही देखे होंगे रियल लाइफ में भी और टीवी ड्रामाज एंड फिल्म्स एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, यहाँ पर तो पुलिस का काम क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ अ सर्विस इज पुलिस एंड व्हाट काइंड ऑफ अ सर्विस डज दिस पुलिस प्रोवाइड्स अस. ये पुलिस जो है और ये पुलिसमैन जो हैं ये हमें किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये आज हम देखेंगे. In town and city communities, there are different services which help the people. The police, fire brigade, hospitals, and the city council are examples of such services. Okay, in the hospitals and in in the big cities and in some towns also, there are some special services which are being provided to the population of that city or town, and these services help the people in different things. And these services are like police and fire brigade, hospitals, and all these kind of services. In every city there are a number of police stations. There are places where policemen and police women work. Their job is to keep us and our property safe. To do this, they have to be out on the streets to see that everyone is obeying the rules. पुलिस का क्या काम है, to maintain the law and order. Okay, and every city has various numbers of a large number of police stations all around the city. जैसे हर इलाके का एक अपना पुलिस स्टेशन होता है. ओके, तो उस पुलिस स्टेशन का क्या काम होता है कि वहाँ के जो इलाके के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उन लोगों की जानों की, उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ की, हर चीज़ की हिफाजत करना. ठीक है, मीन्स अगर खुदा न खास्ता कहीं कोई क्राइम होता है तो हम सबसे पहले किसको इतला करते हैं, किसको इन्फॉर्म करते हैं, वी कॉल द पुलिस, वी इन्फॉर्म द पुलिस. ओके, सो दे कम देयर एंड दे हेल्प द पीपल. सो इन जनरल पुलिस का क्या काम है, इन जनरल पुलिस का काम है लोगों की और उनकी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करना. These rules are called laws. There are many laws in our country. For example, one law says that you cannot steal from another person. People who are caught breaking the law are arrested by the police. Sometimes the police also have to fight the criminals. They have a hard job to do. पुलिस का काम जो है वो बहुत सख्त होता है और बहुत मुश्किल होता है. और जब जैसे कि एक लॉ है कि जी आप किसी दूसरे की चीज़ नहीं चुरा सकते और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है. इसी तरह और काफ़ी सारे जो कानून हैं वो हैं. सब लोगों को, शहरियों को उन लॉज को, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि अगर वो खुद भी अच्छे तरीके से रहना चाहें और जिससे वो दूसरों को जो उनसे नुकसान ना पहुंचा सकें. तो इन सब चीज़ों को मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और रूल्स को फॉलो करवाना जो है वो पुलिस का काम होता है. Some policemen direct traffic in a city. They make sure that people drive properly and obey the rules of the road. They also help people, especially the very old and young, to cross the road. As you can see here that this is a traffic warden. This is a traffic policeman. And nowadays their uniform is of light blue color, sky grayish blue color. ये जो हमारे ट्रैफिक वार्डन होते हैं वो आपने देखे होंगे. ठीक है, तो उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करवाएं. यानी कि वो ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है कि वो रोड्स पर जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं लोगों को कहें कि वो उनको फॉलो करें, और जो फॉलो नहीं करता आपने देखा होगा कि वो रोड के साइड पर अक्सर आपने देखा होगा कि पुलिस, वो जो ट्रैफिक पुलिस है वो उन लोगों के चालान कर रही होती है, उन लोगों को फाइन कर रही होती है. सो ये तो होगी पुलिस की सर्विसेज. नाउ द नेक्स्ट सर्विस इज अबाउट द फायर ब्रिगेड. द नेक्स्ट सर्विस इज फायर ब्रिगेड.
When there is a dangerous fire somewhere, firefighters are called to put it out. They travel in a red fire engine. The fire engine has a loud bell or siren to warn others to move out of the way so that they can get to the fire quickly. जब कहीं खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो है क्या हम बुलाते हैं, फायर फाइटर्स को बुलाते हैं, जो कि एक फायर इंजन लेकर आते हैं, जिसमें कि यानी कि उसको फायर को पुट आउट करने के लिए जो है वो चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फायर फाइटर्स पुटिंग आउट अ फायर इन अ बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में आग लग गई है और ये फायर इंजन है, एंड दीज आर द फायर फाइटर्स एंड दे आर पुटिंग आउट द फायर with the help of water and fire extinguishers. And this is a firefighter, and he is wearing a special kind of suit, and he is protecting his head with a helmet, because he has to save himself, he has to protect himself from the fire. वो अपने आप को पहले महफूज करेंगे तो वो दूसरों को जो है वो बचा सकते हैं. When firefighters get to the fire, they use ladders and long hoses to bring water to put out the fire. They need to use, as you can see here, that they have to climb up the building. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से पे लगी होती है आग, तो वहाँ पर जो है पहुँचने के लिए फायर फाइटर्स को सीढ़ी की, लैडर की ज़रूरत पड़ती है, या उन लोगों को जो है वो लंबे लंबे ये जो पाइप्स होते हैं, हॉजेस होते हैं जिनमें से पानी निकलता है प्रेशर के साथ, उनकी ज़रूरत पड़ती है आग को बुझाने के लिए. दे नीड टू यूज़ लॉन्ग लैडर्स. If the fire is in a tall building, they wear helmets and sometimes carry sharp axes. Do you know why? If people are trapped inside a burning building, they go in and bring them out to safety. जब फायर फाइटर्स जाते हैं तो वो आग बुझाने के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू भी करते हैं, वो लोगों की जान भी बचाते हैं. जो लोग अंदर बिल्डिंग में फंसे होते हैं उनको जो सा अच्छे तरीके से बाहर निकालना सेफली, वो भी उनका काम होता है फायर फाइटर्स का. और उसके लिए उनके पास कुल्हाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जिनसे वो खिड़कियाँ दरवाजे तोड़कर जो है वो अंदर दाखिल होते हैं और लोगों को वहाँ से सेफली बाहर निकाल लेते हैं. पीपल हु वर्क फॉर द फायर ब्रिगेड आर वेरी ब्रेव एज दे टेक रिस्क टू सेव अदर पीपल्स लाइव्स एंड प्रॉपर्टी. ये लोग बहुत ब्रेव होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, क्योंकि वो अपनी जान जो है वो उसमें ख़तरे में डाल के दूसरे लोगों की जान बचाते हैं. So ये फायर ब्रिगेड की सर्विस थी. The next service is hospitals and clinics. People who are very ill are taken to a hospital. Sometimes people are badly hurt in an accident. Sometimes they need an emergency operation. When this happens, they are rushed to a hospital in an ambulance where they are looked after by the doctors and nurses. They are given medicines to make them better. You all know very well that what kind of services do the hospitals and clinics provide. All the ill patients, all the sick patients, or all the injured, or those people who need medical treatment, they are taken to the hospitals, and there the doctors and nurses take care of them, and they give them medicines or operate them or give them a proper treatment. तो ये तो एक well known service है, and the children know about these services, and you can explain them कि hospitals में जो है वो क्या होता है और हम कब जाते हैं. Have you seen how an ambulance races through the traffic to take a sick or injured person to the hospital? Other drivers must always give way to an ambulance so that it can save a patient's life. You can ask the children that have they ever seen an ambulance like this on the road while they are on the road. आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि कभी उन्होंने इस तरह की एम्बुलेंस देखी है रोड पर, और अगर देखी है तो वो उन्होंने क्या सोचा कि ये कहाँ पर जा रही होगी. दैट मस्ट बी रशिंग टू द हॉस्पिटल. और हमें हमेशा जो है अपने एम्बुलेंस को, या इस तरह की जो भी फायर फाइटर, कोई फायर इंजन हो, इस तरह की जो एमरजेंसी जो व्हीकल्स होते हैं, एमरजेंसी ट्रांसपोर्ट होती है, इसको हमें रास्ता देना चाहिए, क्योंकि उसके उन लोगों का जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचना जो है वो ज़रूरी होता है. क्योंकि उसमें जैसे एम्बुलेंस में एक बीमार या कोई ज़ख्मी इंसान है, उसका हॉस्पिटल जल्दी पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसलिए अगर हम उसके आगे खड़े रहेंगे, अगर इस एम्बुलेंस के आगे सारी लाइनें लगी हों सब कार्स वगैरह की, तो ये एम्बुलेंस जो है वो यहाँ से हिल नहीं सकेगी, उसको वेट करना पड़ेगा. और इसमें जो मौजूद अंदर इंसान है जिसको फौरी मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वो ज़्यादा वेट की वजह से उसका नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान, ठीक है. तो इसलिए हमें हमेशा ये हमें अपनी आदत बनानी चाहिए, और हमारे फ़र्ज़ में ये शामिल होना चाहिए कि व्हेन एवर वी सी एन एम्बुलेंस इन फ्रंट ऑन द बैक साइड ऑफ आवर व्हीकल, वी मस्ट गिव देम द वे. हमें एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता देना चाहिए. ओके, हम कहीं लेट भी पहुँचें, दैट इज़ ओके, बट एम्बुलेंस में जो बंदा जिसको
मेडिकल ट्रीटमेंट की अर्जेंट ज़रूरत है, एमरजेंसी है, उसको हमें पहले रास्ता देना चाहिए. क्लिनिक्स आर यूजुअली मच स्मॉलर देन हॉस्पिटल्स. अ क्लिनिक इज़ अ प्लेस you go to when you are not well. In a small clinic, there is usually only one doctor. If you need to have an injection or a checkup, then you can see your doctor at a clinic. As you all know that a clinic is a much smaller setup than the hospital, and usually we can see only one doctor sitting there, and he is doing the checkups of all the patients and giving them medicines or that kind of treatment. तो आप बच्चों को ये इजीली बता सकते हैं कि जब बच्चे जो हैं वो खुद जब बीमार होते हैं तो पेरेंट्स टेक देम टू अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और वो डॉक्टर जो है वो उनको चेक करता है और उनको इंजेक्शन देता है. तो इस तरह के जो रेगुलर मतलब छोटे मोटे जो हमारे होती हैं इलनेसेस, उनके चेकअप के लिए और उनकी ट्रीटमेंट के लिए वी गो टू अ क्लिनिक रादर दैन गोइंग टू अ हॉस्पिटल. ठीक है. सो दिस वॉज द टॉपिक ऑफ हॉस्पिटल. एंड नाउ द नेक्स्ट सर्विस इज अबाउट सोशल welfare services. People who provide free help and care to the poor and needy are doing a social service. In times of accidents or when injuries are caused by fires or when natural disasters such as earthquakes, storms, avalanches and floods occur, social welfare services offer help and support. Social welfare services कौन सी होती हैं? ये जो NGOs होती हैं या डिफरेंट जो हमारी वेलफेयर सर्विसेज होती हैं, वेलफेयर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि जमातुद दावा है हमारी, ठीक है, जैसे और बहुत सारी हैं. और जैसे ईदी सेंटर जो था वो एम्बुलेंस जो है वो फ्री प्रोवाइड करते थे. अब जैसे सारिम बर्नी एक ट्रस्ट है, इसी तरह और बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो कि सोशल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं. जैसे कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, जैसे ये अर्थक्वेक में एक ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि दैट दिस बिल्डिंग हैज़ बीन डैमेज्ड एंड डिस्ट्रक्टेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक. तो यहाँ पे यहाँ कहीं फ्लड आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो रेस्क्यू टीम्स तो जाती ही हैं, फिर वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए उनको खाना, ट्रीटमेंट और वो सब पहुँचाने के लिए हम ये जो हमारी सोशल वेलफेयर सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो वहाँ पे उन लोगों की मदद करती हैं. सो teachers and parents, you can tell the students about these services like this. आप उन्हें ये लेसन जो है वो सुनाएं और ख़ुद भी ये सुने, और बच्चों को इस तरह आप समझा सकते हैं. और बच्चों को आप कोई भी रिलेटेड हॉस्पिटल की कोई आप मूवी दिखा सकते हैं, कोई हल्की सी छोटी सी वीडियो क्लिप आप दिखा सकते हैं यूट्यूब पे, ताकि उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए. ठीक है. सो वी हैव completed this lesson, and now we are going to do the question answers and exercise. The first question is, who might you find working at the following places? Number 1 is a fire station. A fire station, कौन लोग काम कर रहे होंगे फायर स्टेशन पे? फायर फाइटर्स. Here I have written fire fighters. अब पुलिस स्टेशन पे कौन लोग काम करेंगे? पुलिसमैन. हॉस्पिटल में कौन लोग काम करेंगे? डॉक्टर्स एंड नर्सेज. ओके, यहाँ पे आप डॉक्टर्स एंड नर्सेज भी आप लिखेंगे साथ. Question number 2 is, have you seen a fire engine or an ambulance on the road? Where do you think it was going? You have to ask the children that have they ever seen an ambulance or a fire engine on the road, and if they have seen, then what do they think that where it was going? तो बच्चे लाजमी इसका आंसर देंगे कि दैट यू कैन आस्क देम टू गिव द आंसर, और वो ये आंसर दे सकते हैं कि येस आई हैव सीन एन एम्बुलेंस ऑन द रोड एंड आई थिंक इट वाज गोइंग टू द हॉस्पिटल. ठीक है, ये एक सिंपल इसका आंसर आप बच्चों से लिखवा सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर्क डू द पुलिस डू? पुलिस क्या काम करती है? ये हमने वहाँ पे पढ़ा था, इसको मैंने सिंपल एक शॉर्ट लाइन में यहाँ पे लिखा है. पुलिस कीप्स पीपल एंड देयर प्रॉपर्टीज सेफ. पुलिस का क्या काम होता है कि वो लोगों की और उनकी प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करे. द नेक्स्ट इज़ आवर एक्सरसाइज, एंड इन दिस एक्सरसाइज वी हैव आवर वर्क पेज. पार्ट ए इज़ गेस हु दे आर. दे हैव गिवन अस द hints and we have to guess the name. Number 1 is keeps us safe, arrests law breakers, looks after the law, police station. पुलिस स्टेशन पे कौन लोग काम करते हैं? ये सब हिंट से हमें क्या पता चल रहा है? दे आर टॉकिंग अबाउट पुलिसमैन. ओके, सो वी विल राइट हियर पुलिसमैन. द नेक्स्ट इज क्लिनिक, हॉस्पिटल, लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, इज नॉट अ डॉक्टर. एक ऐसा बंदा जो डॉक्टर नहीं है लेकिन वो हॉस्पिटल और क्लिनिक में काम करता है और पेशेंट्स की देखभाल करता है, तो वो कौन होगा? डॉक्टर नहीं होगा तो कौन होगा? नर्स होगा. ठीक है, नर्सेज. द नेक्स्ट इज क्लिनिक, सीज पेशेंट्स, हॉस्पिटल सजेस्ट मेडिसिन्स, यानी कि जो दवाइयाँ देता है, लोगों को देखता है पेशेंट्स को, और क्लिनिक और हॉस्पिटल में काम करता है. ठीक है, तो वो कौन है? डॉक्टर. वेयर्स अ हेलमेट, ट्रेवल्स इन अ फायर इंजन, रेस्क्यूज ट्रैप्ड पीपल, यूजेज लॉन्ग हॉजेस. तो ये कौन है? इससे हमें क्या हिंट मिल रहा है
दैट दे आर टॉकिंग अबाउट फायर फाइटर्स. ओके, सो ये इस तरह आप लोगों ने करवाना है और ये आपने बुक पर ही करवाना है. द नेक्स्ट इज fill in the blanks and you will also do this part on the book. The dash directs the traffic on the roads. कौन ट्रैफिक को डायरेक्ट करता है रोड्स पर? ट्रैफिक पुलिसमैन. Number 2 is if there is a dangerous fire in your house, the dash can be called to put it out. किसको हम बुलाएंगे? फायर इंजन को. ठीक है. Number 3 is people who provide free help to the poor are doing a dash. They are doing a social service. A firefighter wears a dash to protect his head and neck. क्या वो पहनता है अपने सर और गर्दन को बचाने के लिए? हेलमेट. नंबर 5 इज पीपल हु नीड अर्जेंट मेडिकल अटेंशन आर रश टू अ डैश इन एन डैश. कहाँ लेके जाते हैं हम उन्हें? हॉस्पिटल में, इन एन एम्बुलेंस. तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स. एंड नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट सी इज अनस्क्रैम्बल दीज वर्ड्स एंड मैच देम विद देयर डेफिनेशंस. यूज अ डिक्शनरी इफ यू नीड हेल्प. ये स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स हैं, ये हमने इस जो है उसमें पढ़े हैं. ये जो हमारा लास्ट यहाँ पे पैराग्राफ था सोशल सर्विसेज वाला, उसमें हमने ये अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स, एवलांचेस और फ्लड के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है. ठीक है, ये उन्हीं वर्ड्स को इन्होंने स्क्रैम्बल करके लिखा हुआ है. हमने इन्हें अनस्क्रैम्बल करना है और इनको सही करके लिखना है. तो ये नंबर 1 जो है ये होगा एवलांच. ठीक है. नंबर 2 इज फ्लड. नंबर 3 इज अर्थक्वेक. नंबर 4 इज साइक्लोन. नंबर 5 इज स्टॉर्म. और यहाँ पे हमने इनकी डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन हमें यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर नज़र आ रही है. ठीक है, ऑन पेज नंबर 33 वी कैन see the definitions and here the first one is an overflow of water that covers land that is usually dry. ये क्या है? ये फ्लड होगा. ओके, इन सब के मैंने नाम लिख दिया. नंबर 1 इज फ्लड, नंबर 2 इज एवलांच, नंबर 3 is storm, number 4 is cyclone, and number 5 is earthquake. So it was the lesson explanation and exercise solution. Do this lesson with your children, and in the next video we will cover our next lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.